إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمين. اللهم رب زدنی علما آمین. تعریف اس رب کی جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور انہی سے انسانی نسل کو آگے بڑھایا اور اسی انسانی نسل کے اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا، رسول بنایا. آخر میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا. درود و سلام نازل و تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین، چونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا جو جمعے کا خطبے کا سلسلہ ہے وہ تفسیر قرآن کے تعلق سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس جمعہ کے خطبے کے اندر بھی قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے عصر کی. لیکن یہاں پر جو محدثین نے ترجمہ کیا ہے عصر مانے زمانہ، قسم ہے زمانے کی. اللہ رب العالمین خود زمانہ ہے، اس نے اپنے آپ کو زمانہ کہا ہے، اور جو لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو وارننگیں دی ہیں، دھمکیاں دی ہیں. رب فرماتا ہے، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھا کتاب التفسیر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک. قسم ہے زمانے کی، اللہ نے قرآن میں کہا ابن آدم جو ہے مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کی یہ شان نہیں ہے. وشتمنی، ابن آدم مجھے گالی بھی دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ کون بد نصیب انسان ہوگا جو اپنے رب کو گالی دیتا ہو، جو اپنے رب کو برا بھلا کہتا ہو، جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہو. ولم یکن لہ ذالک، اور ابن آدم کا مجھے گالی دینا، ابن آدم کا مجھے جھٹلانا یہ اس کے مناسب نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے. وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، ابن آدم کا مجھے جھوٹا بنانا وہ کیا ہے؟ ابن آدم کہتا ہے فَقَوْلُهُ، ابن آدم کا یہ قول ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ کسی کو پیدا نہیں فرمائے گا. لَن يُعِيدَنِي، جیسا اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا انسانوں کو، ابن آدم کو اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا نہیں فرمائے گا. ابن آدم یہ کہتا ہے، حالانکہ مجھے دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے. اور یہ دنیا کے اندر بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، جب کوئی کمپنی، کوئی بھی انسان جب کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے، کسی چیز کو بناتا ہے تو پہلی مرتبہ اس چیز کو بنانے میں دقتیں آتی ہیں، لیکن جب وہ چیز بن جاتی ہے تو دوبارہ بنانے میں اس کو بہت ہی آسانی ہوتی ہے. تو ابن آدم کا اللہ کو جھٹلانا، اللہ کو جھوٹا کہنا وہ یہی ہے کہ آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں فرمائے گا. وَأَمَّا شَتَمَنِي، ابن آدم مجھے برا بھلا بھی کہتا ہے، مجھے گالی بھی دیتا ہے. رب فرماتا ہے اس کا گالی دینا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، رب نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے.
ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया, किसी और ने किसी को रब का बेटा बना दिया। तो अल्लाह ने कहा इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, इब्न आदम ये कहता है, आदम का बेटा कहता है कि रब ने अपनी औलाद बनाई है, अपनी औलाद साबित की है। व अना अहद अस्समद, मैं तो अकेला हूँ, तन्हा हूँ, बेनियाज हूँ। नम अनिद वलम उंगद, मैंने किसी को नहीं जना, ना मुझे किसी ने जना। वलम यकुन ली कुफुवन अहद, और कोई मेरा हमसर नहीं है, कोई मेरा साजी और शरीक नहीं है। तो वल असर, कसम है ज़माने की, ज़माने को बुरा भला न कहो। रब फरमाता है, सही मुस्लिम उठा के देखें, उक़ल्लिबुल लैल वन्नहार, अना दहर, मैं ही ज़माना हूँ, मैं दिन रात को चेंज करता हूँ, बदलता हूँ। कभी रात छोटी होती है, कभी दिन छोटा होता है, कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है। ये सारी चेंजिंग है, सारे इख्तिलाफ अदना बदली, कभी दिन छोटा, कभी दिन बड़ा, कभी रात छोटी, कभी रात बड़ी, ये सब मैं करता हूँ। तो वह ऐसे कसम है ज़माने की। और अगर ये माने कसम है असर की नमाज जो है वो भी बड़ी अहम नमाज है इस्लाम के अंदर। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा कि हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाज़ों की पाबंदी करो, ख़ासकर नमाज असर की। लफ्ज़ असर जो आया है, मैं उससे एक इशारा कर रहा हूँ आपके लिए। नमाज असर नबी अकरम को इतनी ज़्यादा पसंदीदा थी, इतनी ज़्यादा पसंदीदा थी। आज हम जुमा के अंदर मस्जिदें भर देते हैं, लेकिन असर के अंदर 10 नमाजी मुश्किल से दिखाई पड़ते हैं। जंग खंदक का मौका है, सही बुखारी सही मुस्लिम उठा के देखें, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के सामने खड़े हुए, दुश्मन आपके सामने हैं, नमाज असर का वक्त हो जाता है, आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, दुश्मन आपको नमाज नहीं पढ़ने देता। नबी अकरम खड़े हुए हैं दुश्मन के सामने, मौका नहीं मिल पाता नमाज पढ़ने का। हत्ता ग़रबत शम्स, बुखारी के अल्फाज़ है मुस्लिम के भी, यहाँ तक कि सूरज डूब गया, सूरज छिप गया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से ये अल्फाज़ निकलते हैं, आपकी ज़बान से ये जुमले निकलते हैं, जिसको इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर नक़ल किया है। मन अल्लाहु बयूतहुम नारा व क़ुबूरहुम नारा शग़लून अनिस सलातिल वुस्ता, यानी अन असर, अल्लाह ताला इनके घरों को, इनकी कब्रों को आग से भर दे, इन्होंने हमें असर की नमाज़ पढ़ने से रोक दिया। एक नमाज़ छूटने का यह आलम था, नबी की असर की नमाज़ छूटी थी, जानबूझ के नहीं छोड़ी थी, मजबूरी थी, दुश्मन सामने खड़ा हुआ था, दुश्मन ने आपको नमाज असर नहीं पढ़ने दी। एक नमाज छूटने पर अल्लाह के नबी की ज़बान से ये अल्फाज निकल गए, अल्लाह ताला इनको गारत करे, इनकी कब्रों को आग से भर दे, इनके घरों के अंदर आग पैदा फरमा दे, इन्होंने हमें असर की नमाज नहीं पढ़ने दिया। आज हमारी नमाज़ें कैसी हैं, हम कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं मेरे भाइयों। ये ज़बानें खूब चलती है हमारी दुनिया के बारे में, आज दुनिया में क्या हो रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। एजुकेशन पे कोई बातचीत नहीं होती है, पता है कि ना हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ना अपने बच्चों को दिला सकते हैं, क्यों, हमारे बस की नहीं रहा कुछ भी। बस ज़बान चलानी आती है, गांग चलानी आती है, इसके सिवा कुछ नहीं आता हमें, वो हम चलाते हैं। तो एक नमाज छोड़ने का आगम ये था, वरना ऐसे कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यकीनन सारे इंसान नुकसान में है, खसारे में है। अल्लाह ने सबको कह दिया। अगर आप 24 घंटे की ज़िंदगी पे निगाह डालें तो हकीकत ये है कि इंसान की सुबह से लेकर शाम तक की ज़िंदगी, शाम से लेकर सुबह तक की ज़िंदगी नुकसान के अंदर पड़ी हुई है, ख़तरे में पड़ी हुई है, खसारे के अंदर जा रही है। आदमी नमाज़ें नहीं पढ़ता है, अच्छे काम नहीं करता है, गुनाह पे गुनाह किए जाता है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो बताने की हैं, मौका नहीं है। तो सारे इंसान नुकसान में है, खसारे में है। अब कैसे बचोगे नुकसान से, कैसे बचाओगे अपने आप को खसारे से? इन्नल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, सिवाय उन लोगों को जो ईमान ले आए। ईमान आपके पास है तो आप कामयाब हैं। ईमान कैसा? मक्का का दौर है, मक्का की ज़िंदगी है। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको चटाइयों के अंदर लपेटा जा रहा है। लपेटने के बाद चटाई के एक हिस्से को बंद कर दिया गया और आपके मुंह के अंदर, नाकों के अंदर, आपके ऊपर धुएं को छोड़ा जा रहा है। और धुएं का आलम यह है कि आपको इतनी परेशानी हो गई है उस धुएं से, और ये कहा जा रहा है बिलाल ईमान से फिर जा, तौहीद का इनकार कर दे, अल्लाह का इनकार कर दे। वो बिलाल हबशी
जिनकी आवाज़ में अल्लाह ने जादू पैदा किया था, जो अपनी आवाज़ से लोगों को अपना दीवाना बना दिया करते थे, उन बिलाल हबशी को सताया जा रहा है। इन्नल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान ले आए आपको परेशान किया जा रहा है। और बिलाल हबशी की आवाज़ से, ज़बान से यही अल्फाज निकल रहे हैं, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। इब्ने आदम कहता है अल्लाह ने बेटा बना लिया, बिलाल हबशी कह रहा है कि वो तन्हा है, अकेला है, रब एक है, एक ही है वो। इतना ही नहीं, इस पे बस नहीं किया और आगे बढ़े कुफार मक्का। बिलाल हबशी को मक्का की सरजमीन पर, तपते हुए रेत पर, पत्थरों पर, चट्टानों पर मिटा दिया गया। मुफस्सरीन लिखते हैं, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बिलाल हबशी को जब मिटाया जाता था तो आपके गोश्त के जलने की वजह से चर्बियाँ दिखाई पड़ती थी, आपके गोश्त भी दिखाई दिया करते थे। इतनी सज़ाएँ दी जा रही थी। इन्नल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान नहीं आए, ईमान से नहीं फिरे। हज़रत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनकी ज़िंदगी देखिए, इनके ईमान को देखिए। इन्नल्लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान ले आए वो नुकसान में नहीं है, वो खसारे में नहीं है, वो कामयाब हो गए। ईमान ऐसा होता है, अल्लाह ताला जिसे नसीब फरमा दे, जिसके हिस्से में ईमान आ जाए। हज़रत सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने हज़रत खब्बाब इब्न अरत को अपनी आँखों से मक्का के चौराहे पे फांसी के फंदे पे लटकते हुए देखा था, ईमान की बुनियाद पर, तौहीद की बुनियाद पर, अल्लाह पर ईमान लाने की बुनियाद पर, वो कहते हैं इस वाक़े ने मेरे दिलों की रगें खोल दी, मेरे सीने को कुशादा कर दिया, मेरे दिल पर ईमान को, इस्लाम को वाज़ेह कर दिया और मैं मुसलमान हो गया। इन्नल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान में आए अल्लाह ने उनको बचा लिया नुकसान से, खसारे से, परेशानी से, मुसीबतों से। वो नुकसान में नहीं है। कौन सा नुकसान? जो इंसान को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, इंसान से जन्नत भी छूट जाए, इंसान जहन्नम का ईंधन बन जाए। वामिलुस सालिहात, नंबर 2, और जिन्होंने अच्छे अमाल किए, अच्छे काम किए। ये कौन लोग हैं? ये अल्लाह के नेक बंदे, नेक बंदियाँ हैं। अल्लाह ने जैसे कुरान में कहा, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, अल्लाह ने यहाँ भी ईमान की शर्त लगाई है। जो भी इंसान अच्छे अमाल करे, अच्छे काम करे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वह हुआ मोमिन, वो मोमिन होना चाहिए, ईमान उसके दिलों के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि बस जी हम तो मुसलमान हैं, हमने इस्लाम को अपनाया है, जैसा कि बदवी अल्लाह के रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह हम मुसलमान हो गए, हम मोमिन बन गए। अल्लाह ने कहा ए नबी कह दीजिए अभी तुम मोमिन नहीं बने हो, अभी तो तुमने इस्लाम कबूल किया है। अगर मोमिन होते तो वान तुम इनकुन तुम मोमिनीन की तस्वीर होते तुम। ये वामिलुस सालिहात, नेक काम किए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो वो मोमिन। अल्लाह फरमाता है फननुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उनको पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। कहाँ देंगे ज़िंदगी पाकीज़ा? जन्नत के अंदर। तो यहाँ जो नुकसान है, सारे इंसान खसारे में है, नुकसान के अंदर है, वो वही जन्नत का नुकसान है। सबसे असल जो नुकसान है वो वनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और इंसानों हम तुम्हें तुम्हारे अमाल का बेहतरीन बदला देंगे, और वो बेहतरीन बदला वो क्या है? वो जन्नत की सूरत में हम तुम्हें अता फरमाएंगे। वामिलुस सालिहात, नेक काम किए। आज ज़रूरत है अपने नफ्स का मुहासबा करने की, अपने आप पे निगाह डालिए। सुबह से शाम की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? कितनी नेकियां आपने कमाई, कितने आपने गुनाह किए? आखिर वो दिन कौन सा दिन होगा जब आप सुबह से शाम को, शाम से सुबह को अपना नफ्स का, अपने आप का मुहासबा करेंगे और अपने आप से सवाल करेंगे कि आज हमने कितनी नेकियां की हैं, आज हमने कितने गुनाह किए हैं। नेकियों की बात आती है, आपको मैं अक्सर बताता हूँ, सबसे पहले मुझे याद आता है तो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु याद आते हैं। अल्लाह ने कैसे नबी के सहाबा पैदा किए थे, अल्लाह ने नबी के सहाबा कैसे बनाए थे। दुनिया की तारीख़ के अंदर क़यामत वाक़ हो सकती है, लेकिन रूए ज़मीन पे ऐसे इंसान पैदा होना नामुमकिन सी बात है। अल्लाह के रसूल मेराज पे गए हुए हैं, बड़ा मशहूर वाक़या है।
بارہا کئی مرتبہ بتایا ہے، لیکن بات آتی ہے تو یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، ایمان کی حرارت جوش مارنے لگتی ہے، دن کے اندر ایمان مضبوطی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، معراج پہ پہنچے، بے شمار واقعات آپ نے دیکھے، بہت ساری آپ نے چیزیں دیکھی وہاں پر۔ جب آپ کو جنت کی سیر ہوئی، جب آپ کی انٹری جنت کے اندر ہوئی، جنت میں آپ کو داخل کیا گیا، تو آپ نے دیکھا بین یدیہ، اپنے آگے آگے ایک قدموں کی آہٹ ہے، کسی کے چلنے کی آہٹ ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، نائٹ بھاگی ہوئی ہو، آپ روڈ پہ چل رہے ہو، کوئی آدمی جوتے پہن کے آ رہا ہو اور اس کے ٹھک ٹھک کی آواز آپ کو سنائی دے گی کہ میرے پیچھے کوئی آدمی آ رہا ہے، یا وہ آدمی آپ سے آگے ہوگا تو آپ کو دکھائی دے گا، محسوس ہوگا کہ میرے آگے کوئی آدمی ہے جس نے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور وہ میرے آگے آگے چل رہا ہے، یہ آپ کو احساس ہوگا۔ اللہ کے نبی جنت کے اندر ہیں، معراج کے موقع پر اپنے آگے آگے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ جبرائیل نے امین سے پوچھے، اے جبرائیل ما ھذا، جبرائیل یہ قدموں کی آہٹ کیسی ہے، یہ آواز کیوں آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کس کی ہے یہ؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے جو جنت کے اندر آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، بلال حبشی دنیا کے اندر موجود ہے اور نبی اکرم جنت کے اندر قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں آپ کی۔ جب آپ واپس آئے، بلال حبشی سے ملاقات کی، پہلی فرصت میں صبح ہوتے ہی کہا کہ بلال، میں ایک سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کون سا نیک عمل کرتے ہو، کون سا نیک کام کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر اپنے آگے آگے سنی ہے۔ میرے بھائیو، بلال حبشی سے جب یہ سوال اللہ کے نبی نے پوچھا ہوگا، ان کی خوشی کیسی رہی ہوگی کہ میرے قدموں کی آہٹ نبی کے آگے آگے جنت کے اندر۔ اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وعامل الصالحات، وہ انسان نقصان میں نہیں، خسارے میں نہیں، جو نیک کام کرے، نیک عمل کرے، اچھا کام کرے۔ کہ یا رسول اللہ، جب بھی وضو بناتا ہوں اور جتنا میرے حصے میں ہوتا ہے، میری تقدیر میں ہوتا ہے، اتنی میں نفل نماز ادا کر لیتا ہوں۔ کہا بلال، یہی وہ تمہارا نیک عمل ہے جس کی بنیاد پر میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ ایمان بھی بلال حبشی نے دکھا دیا کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ چٹانیں ٹوٹ گئی، چٹانیں بکھر گئی، بلال حبشی کا ایمان نہیں ٹوٹ پایا۔ اور وہی بلال نیک عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ نیک عمل کہتے کسے ہیں، اچھے عمل کہتے کسے ہیں، اور ان کی وجہ سے جنت میں قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے۔ وعملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا، اور جو ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرتے رہے، اچھے کام کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، 24 گھنٹے کی زندگی کو آپ چاہیں تو اچھا بنا سکتے ہیں۔ اشارہ سمجھ لیجیے، بس صبح اٹھیے، ایک معمول بنائیے صبح اٹھنے کا، اٹھتے ہی دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، رب کی تعریف کی۔ بستر سے اٹھیے، اٹھنے کے بعد قضاء حاجت کے لیے جائیے، جو شریعت نے سسٹم دیا ہے آپ کو، الٹا پاؤں سیدھا پاؤں کا دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہاں سے بھگائیے، غفرانک کا کہیے، وضو بنائیے، وضو بنانے کی دعا پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور ترمذی میں اتنی زیادتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کپڑے پہنیے، جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے، نماز پڑھنے جائیے، گھر سے نکل رہے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، مسجد میں آ گئے، سیدھا پاؤں اندر کیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نمازیں پڑھی، رب کو راضی کیا، رب سے دعائیں مانگی، گھر کی طرف چل دیے، اللہم انی اسألک من فضلک، اپنے گھر میں داخل ہوئے، بسم اللہ۔ اپنی زندگی کو چاہو تو نیک زندگی بنا سکتے ہو۔ وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان میں آئے، نیک کام کیے، اچھے اعمال کرتے رہے، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ اچھے اعمال کی کوشش کیجیے، عادت ڈالیے، تاکہ آپ بھی نقصان سے، خسارے سے بچ جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی نیکیوں کا موسم میں بہار بن جائے گی، آپ کی زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے، اور یہ چہرہ، اس پہ اللہ کی طرف سے آٹومیٹک خوشیاں اور چہرے پہ چمک آ سکتی ہے۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، اچھے اعمال کیے۔ تیسرا انسان، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی، وصیت کی۔ آج یہ حق کہنا، حق بتانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر گھر کے اندر اختلاف ہو گیا، کچھ بات ہو گئی،
माँ बाप के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर, भाई बहनों के अंदर, पूरे ख़ानदान के अंदर, तो एक आदमी हक़ बात कहने से डरता है। अगर मैंने कह दी तो मसला बड़ा ख़राब हो जाएगा। वतवासो बिल हक़, हक़ बात वहाँ आपको बतानी है, हक़ बात वहाँ पे आपको कहनी है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी देखिए, सहाबा का माहौल देखिए, रसूल अकरम पे मर मिटने वाले सहाबा की ज़िंदगी देखिए। जब भी मौका आया हक़ बात कही उन्होंने। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब हबशा पहुँचे मक्का से हिजरत करने के बाद, जब मक्का के लोग पीछे पीछे हबशा पहुंच गए इनके और इनको वहाँ से वापस लाना चाहते थे, बादशाह के सामने बातचीत शुरू हुई, नज्जाशी के सामने कहा कि तुम लोग कहाँ से आए हो, आने की वजह क्या है, मकसद क्या है, वहाँ से क्यों भागे हो। क्या कहा उन्होंने? हक़ बातें नज्जाशी के सामने कही। नज्जाशी बादशाह अपने ज़माने का बादशाह था, चाहते झूठ बोल सकते थे, लेकिन वतवासौ बिल हक़, आपस में एक दूसरे को हक़ बात की वसीयत करते हैं, हक़ बातें बताते हैं। नज्जाशी बादशाह के सामने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला इन्होंने जितनी बातें रखी तमाम की तमाम हक़ बातें थी, सच बातें थी कि बादशाह हमारे मक्का के अंदर एक नबी आ चुके हैं, उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है, हमने उनको अपना नबी मान लिया है, हम उन पर ईमान लाए हैं और ये मक्का के लोग हमें परेशान करना चाहते हैं, हमें मारते सताते हैं। एक लंबी गुफ्तगू है, सही बुखारी उठा के देखना किताब वही, आपको मसला समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो वतवासौ बिल हक़, बादशाह ने भी कहा कि तुम सही कहते हो, ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था और वो नबी बरहक़ है, नबी सच्चे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। उस बादशाह ने भी तायीद की और हक़ बात का ऐलान किया उसने अपने समाज, अपनी पार्टी के अंदर और अपने हुकूमत के अंदर, सल्तनत के अंदर, कि तुम सही कहते हो। तो वतवासौ बिल हक़, वो लोग नुकसान में नहीं है, खसारे में नहीं है, जो एक दूसरे को हक़ बात की वसीयत करते हैं। हक़ बात बताइए, चाहे अपना नुकसान ही क्यों ना हो जाए। अगर आपने किसी सामने वाले को, अपने भाई को हक़ बात के अलावा दूसरी बात बता दी तो यकीन जानिए इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, आप नुकसान में पड़ गए, खसारे में आ गए, आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। तो अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं, जो खसारे में नहीं है, जो नुकसान के अंदर नहीं है, वो वतवासौ बिल हक़ आपस में एक दूसरे को हक़ बातों की वसीयत करते हैं। और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम भी अवाम को, लोगों को, समाज के अंदर बसने वाले मुसलमानों को हक़ बात बताएँ, हक़ बात की वसीयत करें। नबी का फरमान क्या है, अल्लाह के रसूल की तालीम क्या है, कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी चाहिए। चौथा इंसान वतवासौ बिस्सब्र, आपस में एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। सही बुखारी उठा के देखें आप, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं एक साथी से, क्या मैं तुझे जन्नती औरत न दिखाऊं, क्या मैं तुझे जन्नती औरत के बारे में ना बताऊं, या मैं तुझे जन्नती औरत ना दिखा दूं। कहा क्यों नहीं, कहा कि ये देखो, ये सियाह फाम औरत जो है, ये काली कनोटी औरत देख रहे हो, ये जन्नती औरत है। कहा वो कैसे? कहा ये औरत अल्लाह के रसूल के पास आई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कहा अल्लाह के नबी से, या रसूलल्लाह मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मुझे दौरे पड़ते हैं, मिर्गी की बीमारी है मुझे, और जब मुझे वो दौरा पड़ता है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होता ऐसा है कि मैं बरहना हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं होता, मेरी इज़्ज़त उतर जाती है, मेरी चादर खिसक जाती है मेरे ऊपर से। ये अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरे साथ में ऐसा ना हुआ करे। अल्लाह के नबी ने किया, इन शेती सबरती वंगा की अनजन्ना व इन शेती दाऊतुल्लाह अन युआफिया की। सही बुखारी के अल्फाज हैं, अगर तू सब्र से काम में, तेरा ठिकाना जन्नत है। और तू चाहती है मैं दुआ करूँ, अल्लाह ताला तुझे आफ़ियत दे, तो मैं दुआ कर देता हूँ। औरत ने सोचा, अगर मैं सब्र से काम लेती हूँ तो मेरा ठिकाना जन्नत है, अगर मैं दुआ करवा लेती हूँ फिर तो पता नहीं जन्नत है नहीं है, फिर कन्फर्म नहीं है। कहना कि नबी सब्र तू, मैं सब्र से काम लेती हूँ ताकि मुझे जन्नत मिल जाए, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप अल्लाह से ये दुआ कीजिए, जब मुझे दौरा पड़े, जब मुझे ये बीमारी वाक़ हो जिस वक्त, तो अल्लाह से ये दुआ कर दीजिए मैं बेपर्दा ना हुआ करूँ बस।
एक औरत आप देखिए मिर्गी उसे होती है, दौरा पड़ता है, बेपर्दा हो जाती है, बरहना हो जाती है, अल्लाह के रसूल के पास या रसूल दुआ कीजिए, आपने कहा कि सब्र से काम में जन्नत का ठिकाना है। इतनी बड़ी मुसीबत पे सब्र किया और अपने आप को जन्नती बना लिया सब्र की बुनियाद पर, लेकिन उस बीमारी पे सब्र किया। तो ये सब्र होता है। वह तवासौ बिस्सब्र, आपस में एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। सब्र देखिए उम्मे सुनैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या सही बुखारी के अंदर पढ़ लीजिएगा। कई मरतबा बताया मैंने, उनके बच्चे का इंतकाल हो गया था। शोहर वापस आए, कहा कि बच्चा कैसा है? कहा कि पहले से ज़्यादा आराम में है, पहले से ज़्यादा राहत के अंदर है। जाहिर सी बात है, जब वो ज़िंदा था तकलीफ़ थी, अब मर चुका है तो पहले से ज़्यादा सुकून के अंदर हो चुका है। शोहर के लिए खाना बनाया, बताया नहीं कि बच्चा मर चुका है। तैयार हुई, अपने आप को संवारा, शोहर के बिस्तर पर पहुँची। शोहर ने हम बिस्तरी की। सुबह हुई, शोहर जाने लगे, उनको पकड़ा, कहा कि मेरे शोहर, मेरे आका रुकिए, मेरी बात सुनिए, ये बताइए अगर तुम्हारे पास किसी की अमानत हो तो क्या करोगे? कहा कि जिसकी अमानत है उसको वापस कर दूंगा। कहा कि आपका बेटा अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने उसको मिल लिया है। एक खातून का सब्र देखिए, बच्चे का इंतकाल हो गया, सही बुखारी के अल्फाज हैं, इंतकाल हो चुका है रात में। शोहर वापस आए, शोहर को बताया नहीं। कैसे उस औरत ने एक पत्थर अपने सीने पे रखा होगा और अपने सब्र का जो है सब्र को थामा होगा, सब्र किया होगा उस औरत ने। और रात में सबरी शोहर के लिए खाना भी बनाया, हम बिस्तरी भी की। अल्लाह के रसूल के पास ये सहाबी जाते हैं, अबू तन्हा, और अल्लाह के नबी से वाक़या बयान करते हैं, माजरा बयान करते हैं, गुस्सा भी होते हैं आप अपनी बीवी पर। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, उम्मीद है अल्लाह ताला तुम्हारी रात में बरकतें पैदा फरमा दे। बच्चे का इंतकाल हो चुका है, बीवी संवर के सज के शोहर के बिस्तर पे जा रही है, शोहर को राज़ी कर रही है, खुश कर रही है। सब्र देखिए एक औरत का सब्र। मर्द ऐसा सब्र कर सकते हैं, सवाल पैदा नहीं होता। और आज की औरतें, उनसे ही बहुत कम उम्मीद है। तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ताला बरकतें पैदा फरमाए तुम्हारी रात में। हज़रत अनस कहते हैं अल्लाह ताला ने 9 बच्चे दिए इनको और 9 के 9 हाफिज़ कुरान थे, दीन के जानकार थे, इल्म के जानकार थे, किताब और सुन्नत का इल्म रखने वाले थे। तो वह तवासौ बिस्सब्र, आपस में एक दूसरे को सब्र की वसीयत की, सब्र की नसीहत की। इसलिए मुसीबत आए सब्र कीजिए। अगर मुसीबत पे सब्र नहीं किया तो आपका सवाब ख़त्म हो गया। आखिरी बात, सही बुखारी किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 1301, 1301। एक औरत कब्रिस्तान में बैठी रो रही थी अपने बच्चे की कब्र पे। मालूम यह हुआ कि औरतें भी कब्रिस्तान जाना चाहें तो जा सकती हैं वक्ती तौर पर। रो रही थी बैठी हुई कब्र पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, कहा कि सब्र से काम ले। कहा कि जाइए आप, मुसीबत तो मुझ पे आई है। उसे नहीं पता कि अल्लाह के नबी है। किसी ने कहा कि जानते हो कौन थे अल्लाह के नबी थे? तो भागी भागी जाती है, रसूलल्लाह मुझे नहीं पता था कि आप थे, अब मुझे सब्र आ गया। आपने कहा सब्र आ गया? इन्नमा सब्र इंदा सदमति मूंगा, सब्र तो पहली मुसीबत के वक्त होता है। जब सदमा आता है, जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, सब्र तब होता है। बाद में तो सब्र सभी को आ जाता है। तो मालूम क्या हुआ कि जिस वक्त मुसीबत आती है उस वक्त का सब्र काबिल तारीफ़ होता है और वही सब्र इंसान को जन्नती बना देता है। हज़रत सुमैया का वाक़या रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपके शोहर, आपके बेटे और आप खुद, आपको बरहना कर दिया गया और आपको मुसीबत में गिरफ्तार किया गया। आपने सब्र से काम लिया। अल्लाह के नबी ने अल्फाज कहे अपनी ज़बान से, इस भी आना यासिर, ए आना यासिर, सब्र से काम लो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। क्यों? सब्र की बुनियाद पर उन्होंने मुसीबत पे सब्र किया था, अल्लाह को राज़ी किया था। तो वो आदमी नुकसान में नहीं जो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अच्छे काम किए, नेक अमाल किए, हक़ बात की और आपस में एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। ये थी चंद बातें आज की जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।